ગાયનો ઘી 1-2 ચમચ, અને આમાં આપણે વઘાર કરવાનો હિંગનો. હિંગ 1 ચૂટકી, 1-2 ગ્રામ એમાં જીરા અને અજમા. જીરા અજમા 1-2 ગ્રામ, વધારે નહીં. આમાં 10 ગ્રામ પછી આ હળદર, 10 ગ્રામ આ હળદર, અને આ મેથી 20 ગ્રામ મેથી, અને 200 ગ્રામ આ એલોવેરા. આ બધું આ મેળવીને અને એને પછી ધીમે ધીમે મંદ આંચ ઉપર શેકી લેવાનું. અને આ ઔષધિ તૈયાર થઈ જશે. આમ તો આ શાકભાજી છે, પણ આ ઔષધિ છે આર્થરાઇટિસની. આ તમે ખાશો ના તો તમારા જોઈન્ટ એકદમ વજ્ર જેવા થઈ જશે. अब જો આ નાનકડી વાત છે કે ફક્ત આ કરવાથી તમારા જોઈન્ટ્સ વજ્ર જેવા થઈ જશે, પણ એમાં થોડું કરવું તો પડે ના. ધીમે ધીમે પછી આ મંદ મંદ આંચ ઉપર તમે એને શેકીને પોતાની આવશ્યકતા પ્રમાણે એમાં ઘી નાખીને, આ ઘી ગાયનો ઘી ધીમે ધીમે અંદર મંદ આંચ ઉપર તમે એને શેકીને, તો ઘી પર લુબ્રિકેશન માટે બહુ જ જરૂરી છે. 2 ચમચ ઘી આ સાંધાના દુખાવા માટે, 2 ચમચ ઘી આ મસ્તિષ્ક માટે, આયુષ્ય માટે બહુ જરૂરી છે. અને એની સાથે સાથે આજે એક બીજો ઉપાય તમે બતાવી રહ્યા છીએ. આમાં અમે અમરબેલ નાખ્યું, અમરબેલ અને તલનું તેલ. અમરબેલ તલનું તેલ, આમાં લસણ અમે મૂક્યું, લસણ એ લસણ અમે જળાઈ નાખ્યું. અમે એ લસણ, અમરબેલ, નિર્ગુંડી, પારિજાત, આખાના પાંડા અને એ અરંડના પાંડા એ બધાને મળી જાય છે. અને જે બધું નહીં મળે તો પીડાંતક આ ક્વાથ એનું જ ઉકાળું કરીને એ જ તેલમાં પકાવી લેવાનું, તો તમારું પીડાંતક તેલ તૈયાર થઈ જશે. આ પીડાની સ્પ્રે, પીડાંતક તેલ આ બધું અમે બતાવીએ છીએ, એનું ઘણું બધું લાભ થાય છે. તો જુઓ, આ તો થયું એક ઉપાય વિશેષ આર્થરાઇટિસ માટે. આ શાકભાજી આ જ લેવાનું. અને બાજરાનો લોટ, રાગી, બાજરાનો લોટ અને રાગી બંને અડધું અડધું લઈને એના જ રોટલી બનાવીને ભાખરી બનાવીને જે તમને ગમતું હોય એ ખાવાનું. અને આ મંદમ આંચ ઉપર એને ધીમે ધીમે એને આ શાક તૈયાર કરવાનું. આ તેલ તૈયાર થઈ જશે. અને એની સાથે સાથે જેને બહુ જ પ્રોબ્લેમ છે એને આમ અમે મૂકેલું છે પીડાંતક ક્વાથમાં એરંડનું તેલ થોડુંક આમાં ઓર્થોગ્રીટ, ચંદ્રપ્રભા, લાક્ષાદી ગુગુલ, જેને જેવી આવશ્યકતા એનાથી બસ્તી એનેમાં આપવામાં આવે. અને પોટલી મસાજ એમાં આ બધા ઔષધિઓ છે ને એને કલ્ક કરીને, એનો પેસ્ટ કરીને ને ગરમ ગરમ પીડાંતક તેલમાં શેકીને એનાથી આ ઘૂંટણ ઉપર કરવામાં આવે. એ ભાઈ પણ જ્યારે અહીંયા આવ્યો હતો ત્યારે શું હતું, क्या क्या था आपको? मेरे को घुटनों में बहुत दर्द था, मैं चल नहीं पाता था, हाथों में मेरे हाथ ही नहीं मोड़ पाते थे, पूरा सर्वाइकल का पेन था और उस वजह से मेरा हाथ बिल्कुल काम करना, मैं 100 ग्राम का एक गिलास भी नहीं उठा पाता था. यहाँ आने के बाद और निरामयम में केवल 6-7 दिन के ट्रीटमेंट से मेरा पूरा कंधा ठीक हो गया. मैंने यहाँ पे कैरियो करवाया, एक्ोपंचर करवाया, एक्ो प्रेशर करवाया, फिजियोथेरेपी कराई. पूरा हाथ मेरा आप देखिए बिल्कुल इस प्रकार से पूरी मुट्ठी बंद हो रही है. अब मैं वेट भी उठा पाता हूँ. तो मेरा आप सभी से ये आग्रह है कि जीवन में बहुत जगह मैं भी घूमा, बहुत देशों में घूमा, पर एक हफ्ता जो मेरा यहाँ कटा, मैं सबसे ये आग्रह करता हूँ जीवन में एक बार निरामयम में आप जरूर आएँ और यहाँ जिस तरीके से सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं वो ट्रीटमेंट्स लें तो जीवन आपका सुधर जाएगा. इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, आप सब स्वस्थ हो जाएंगे. स्वस्थता के लिए निरामयम योगग्राम एक बार सभी का आना अति आवश्यक है. તો એ તો સંજીવભાઈ દેહરાદૂનમાં નજીકમાં રહે છે, પણ એ અનુભવ કરીને જ્યારે જોયા
ત્યારે એને ખ્યાલ આવ્યો કે ये तो अद्भुत છે। पड़ोस से आए हैं चांदना जी तो हैं हमारे, और इनकी मिसिज भी है उधर, उनको देना भाई माइक। हैं वो हमारी बहन जी, क्या नाम है? ज्योति। हाँ, तेरे को क्या था ज्योति? मैं स्वामी जी 2014 में मुझे लेफ़्ट नी में ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोसिस हुआ था और मैं बिल्कुल बेड रिडन हो गई थी। ओहो, उसके बाद मुझे स्लिप डिस्क हुआ, मुझे सर्वाइकल हुआ। मैं लंबे वैसे लंबे सांस कर लो। हाँ, मैं वैसे केवी में टीचर थी, अभी मैं रिटायर्ड हूँ। तो उस समय मेरे लिए नौकरी करना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। तो 2017 में मैं योग से जुड़ी और उसके बाद से अब तक मैं आराम से चलती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले मुझे थोड़ा सा नी में फिर प्रॉब्लम हुई थी, वो मुझे यहाँ आके कैरोप्रैक्टिक से आराम मिल गया और 3 दिन में मैं आराम से स्टेप भी चढ़ रही हूँ। जबकि मैं फर्स्ट डे थोड़ा यहाँ चलना भी हो गया तो मैं चल नहीं पा रही थी, तो मुझे बड़ा पेन था। पर कैरोप्रैक्टिक जो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं ली, फर्स्ट टाइम ली। मुझे पहले तो डर लगा कि कहीं मेरा घुटना टूट ही ना जाए, पर मुझे उससे इतना आराम मिला कि मैं अभी भी ऐसे करके बैठी हूँ, ये देखिए, जबकि मैं इससे मोड़ नहीं पाती थी। और इससे मैं आराम से 2.5 घंटे सुबह आपका सेशन भी अटेंड कर रही हूँ, सब कुछ आराम से अब कर पा रही हूँ। सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम और छोटे छोटे धन्यवाद। यहाँ पर थेरापीज कराते हैं। अब जैसे ये कुछ भी नहीं, अर्थराइटिस वालों के लिए बात तो छोटी सी है, 100-200 बार करवाते हैं। हाँ? पीछे भी भाई, क्या हाल है भाई तुम्हारा? स्वामी जी नमस्कार। मैं चल नहीं पाता था, अब मैं 4 दिन हो गए मैं अच्छी तरह चल पा रहा हूँ। जब मैं आया था तो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था। क्या दिक्कत क्या हो गई? अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी। इतना ज्यादा? उम्र भी ज्यादा नहीं आपकी तो? मेरी 44 है। 44 की उम्र में अर्थराइटिस ने पकड़ लिया। हाँ? अब टेढ़ा मेढ़ा 4 चल रहा था, सीधा सीधा चलने बिल्कुल लगा। सीधा चल पा रहा आराम से आराम से आराम से। ठंड है, पहले टेढ़ा टेढ़ा हूँ। चल बिल्कुल रहा जो था। आया था टेढ़ा चलता था, अब बिल्कुल सीधा चल रहा हूँ। क्या स्वामी करते जी। हो तुम? मैं एक्स सर्विस मैन हूँ, आर्मी से रिटायर। वही मैं देखा, मैंने फौजी जैसा है, लेकिन फौजी की भी टांग गड़बड़ हो गई। क्या नाम बेटा? राजीव शर्मा। चल, बहुत आशीर्वाद। पीछे माता जी को देने दो, बगल में उसको, बहन जी को। अब देखो, सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, छोटे छोटे यहाँ प्रोसीजर्स करवाते हैं, उसी से ही। हाँ, 2017 से घुटने में बहुत दर्द है और मैं सभी डॉक्टर्स के पास गई पर किसी से फ़र्क नहीं पड़ा और डॉक्टर ने मुझे नी रिप्लेसमेंट का बोला, तो मैंने आपकी शरण में आना उचित समझा। और पिछले 4 दिनों से मैंने यहाँ जानू बस्ती, पोटली मसाज और नेचुरोपैथी और सभी टाइप का ट्रीटमेंट करवाया और कल लीच थेरेपी भी कराने वाली हूँ और उससे मुझे 50% तो आराम लग रहा है। और मेरा भी यही कहना है कि सभी को एक बार यहाँ योगग्राम जरूर आना चाहिए। तो ये देखो, लीज थेरापी इधर करा रही है, इसको देखो, रेखा को। इसने तो मेरे को जब बताया तो मेरे को ही विश्वास नहीं हो रहा था, इसका घुटना ऊपर चढ़ गया। कैसे चढ़ गया था रेखा? गिरी थी ना स्वामी जी, गिरी थी। तो गिरने से यहाँ कुछ क्रैक हो गया था, तो बोले ये ऊपर आ गया, मुझे पता भी नहीं पड़ा। यहाँ ऊपर था, आ गया? यहाँ था। बताओ, खिसक करके 4-6 इंच ऊपर चला गया। वो बोलते हैं ये यहाँ से घुटना था, यहाँ भी घुटना बन गया पूरा। तो पूरा फिर तो बोले आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। मेरा मतलब पैर सीधा ही रहेगा, कभी टेढ़ा नहीं होगा, आप नीचे नहीं बैठ सकते। 6 महीने ऐसे ही निकाल दिए। फिर मैंने अपना योगा से सब, इससे स्वामी जी और खान पान से सब ठीक किया अपना। और सर्वाइकल भी तो था? सर्वाइकल था, बहुत था। मैंने तो योगा से भी किया है उसको, बहुत ट्रीटमेंट भी दिया था उन्होंने, सब वो ट्रैक्शन वगैरह दिया था। लेकिन बाद में जब मैंने MRI कराया तो बोले आपका तो ठीक भी हो गया, है ही नहीं कुछ आपको। तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, बिल्कुल ठीक हो गया स्वामी जी। जितना भी दर्द है उसका खात्मा हो जाता है पूरा, खाली सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम से। बाकी छोटे छोटे उपाय तो हम बताते ही है। स्वामी जी आपका तो बहुत बड़ा ऋण है हमारे ऊपर। चलो, अब इसकी माता की लीच भी अब हटा देते हैं यहाँ। अब ये लीच थेरापी से इसको अलाबू करवाया था। अलाबू से, लीच से ऐसे चलती थी बस, ऐसे ये पैर ऐसे चलता था, पैर उठता नहीं था, पूरा घिचट घिचट के पैर चलती थी। इस तरह पैर चलता था। चल, आशीर्वाद। अब ये लोकल स्टीम भी, जिनको दर्द है पीड़ांत तक, ये उकाड़ा डाल करके प्रेशर कुकर में उससे स्टीम ले लो, तो उससे एकदम से ना अंदर से खुल जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है,
प्राणायाम प्राणायाम 10-10 20-20 मिनट भस्त्रिका आधा 1-1 घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम सूरजना तड़काમાં બેસીને કરો તો દુખાવો રહે જ નહીં. હા, એ તો ગુજરાતી જ છે અમારી બેન. હા, તમને શું થયું હતું? મને ગોઠણમાં દુખાવો હતો અને ડૉક્ટરે મને ગોઠણનો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ માટે બોલી દીધું હતું, પણ મેં ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ના કરાવ્યું અને પતંજલિને ફોલો કરીને 2011થી મેં શરૂ કર્યું. અત્યારે મારા પૂરા ગોઠણ સ્વસ્થ થઈ ગયા છે. ફ્રોઝન શોલ્ડર હતું, સર્વાઇકલ હતું, બધું સરસ થઈ ગયું. બધા મટાડી દીધા. બધા મટાડી દીધા. ફ્રોઝન શોલ્ડરમાં તો 8 દિવસ સુધી હાથ આવી છે, કપડાં બી નહોતું પહેરતી શકતી હું. આટલું બધું એટલું બધું હતું દુખાવો, પણ યોગા કરી અને ફોલો કરીને. શું નામ છે? રશ્મિ. રશ્મિને એકને જ બધી પ્રોબ્લેમ હતી. ટ્રાન્સપ્લાન્ટનું કહી દીધું હતું, સર્વાઇકલ પણ હતું, કોલાઇટિસ પણ હતું. મતલબ કે પૂરી રોગનું ઘર જ હતી હું, પણ અત્યારે પૂરી સ્વસ્થ થઈ ગઈ. આ જો એક યોગથી શું થાય છે. એટલે એબીપી અસ્મિતા પર દરરોજ અમે કહીએ ને કે યોગ ભગાવે રોગ. એને કોલાઇટિસ હતો, આર્થરાઇટિસ હતો, ઘૂંટણ દુખતા હતા, ખંભા દુખતા હતા, ગરદન દુખતી હતી, પેટ દુખતું હતું. માથું નથી દુખતું? ના, માથું નહોતું દુખતું. માથું દુખે, જે પણ દુખે યોગ કરો. યુરિક એસિડ વધતું હતું. હા, યુરિક એસિડ વધી જાય, કોઈ પણ અનવાન્ટેડ ચીજ વધી જાય, યોગ કરો. અને હિમોગ્લોબિન તો મારું 7 પોઈન્ટથી ક્યારે વધ્યું જ નહોતું. અત્યારે કેટલું છે? અત્યારે 12 પોઈન્ટ. હા, જો 7 થી 12 હિમોગ્લોબિન થઈ ગયું. એટલું ખજૂર આ બધું અંજીર ખાતી, ખજૂર ખાતી, એપલ ખાતી, ચકંદર ખાતી, શેનાઈથી વધ્યું નહીં, આ યોગાથી વધી ગયું. ઘણા બધા આમ કે ખા કરીને આમ કે મારે હું એ ખાઈશ તો એનાથી મારું વધી જશે. પાલક ખાવ, આ ખાવ, બધું. આ પાલકથી, જો પાલકથી, ગાજરથી, ચુકંદરથી, અનારથી, દ્રાક્ષથી, ખજૂરથી બધું હિમોગ્લોબિન વધે. પણ જેનું સિસ્ટમ સારું ના હોય ને તો એનાથી કોઈથી નહીં વધે. કોલાઇટિસ જ હતું તો જે ખાય ખાના પેખાનામાં નીકળી જાય. અરે હું પીળાંત ગોળી ખાતી હતી ને તો वो પૂરેપૂરી નીકળતી હતી. હા, ટીકડી ખાય એ પણ નીકળી જાય. હા, પૂરેપૂરી નીકળી જતી હતી. પાણી પી તો પાણી બી નીકળી જાય, એટલું ડાયજેશન મારું વીક હતું. અત્યારે અને હાઇપર એસિડિટી. અત્યારે હું બધું ખાઈ શકું છું. હા, બધું ખાવે છે. કારણ કે ગુજરાતીમાં તમારા ઢોકળા, થેપલા મેં નહોતા ખાધા. ઢોકળા, થેપલા, લાડવા, પણ અત્યારે હું બધું ખાઈ શકું છું. બધું ખાવે. એટલી ખુશ છું. 3 વાર યોગરામ આવી. હવે તો એવું લાગે મારે હર વર્ષે આવવું છે અહીંયા. હા, દરેક વર્ષે એકવાર આવી જાજો તો 100 વર્ષ સુધી તબિયત સારી રહેશે. અને આ વખતે તો મને બહુ જ ફાયદો સરસ થયો. 15 દિવસ આજે હું જા રહું છું. જાવ છે આજે જાઉં છું. હા, એ ભાઈ સાથે છે? ના. हाँ, चलो इन भाई ने आपको। તમે ક્યાંથી છો? आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ। तुमको क्या फायदा हुआ? ये तो जबलपुर से, ये दिल्ली से। हाँ। मैं दिल्ली से हूँ। मेरे को जोड़ों में काफ़ी दर्द रहता था, 25 साल से रहता था। 25 साल से? और मैं यहाँ 5वीं बार आया हूँ। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 62 साल है। हाँ, जोरदार। तो इसमें जब से मैंने आपके साथ, स्वामी जी के साथ 2005 से मैं जुड़ा हुआ हूँ योगा में, और मैं 5वीं बार यहाँ आया हूँ और पूरा जो है मुझे आराम है पूरे शरीर में। शुगर मेरी बढ़ गई थी, जोड़ों में दर्द था, सब मिटा लिए? हाँ, सब तकरीबन जो है 99% कवर है। क्या बात है। अब 1% तो थोड़ा बहुत उम्र के साथ कोई एक आधी चीज चले तो चलती रहना, अपने को परेशान नहीं करनी चाहिए। कोई भी बीमारी थोड़ी बहुत, पहली बात तो हो ही नहीं, और कोई हो तो बोले चुपचाप रहे, मेरे को परेशान करने की जरूरत नहीं। योग से आप उसको धमका सकते हो। अभी देखो, इसको देना विमलेश को, એ તો જ્યારે આવી હતી ને ત્યારે એની કેવી હાલત હતી અને અત્યારે કેવી છે? जब आई थी विमलेश तब क्या था और अब क्या है? जरा जब आई थी मेरे माइक पास में रख। हेलो, जब मैं आई थी स्वामी जी तो मेरे से चला ही नहीं जाता था। मेरे जोड़ों में दर्द, ये जो है ये मुड़ता ही नहीं था। मुड़ता ही नहीं था? मुड़ता ही नहीं था, बहुत दर्द होता था दोनों ये हाथ के। और अब देखो, और चल लेती मैं 5 किलोमीटर, यहाँ मेरे से आधा किलोमीटर, क्या इतनी दूर भी नहीं चला जाता था। चलने में भी दिक्कत, हाथ मोड़ नहीं बढ़ा जाता। और गर्दन की क्या हालत? गर्दन तो मेरी अकड़ी रहती थी, बिल्कुल अकड़ी रहती, जाम ऐसे करती थी ना, बस इतनी। अब तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। ला, अब गर्दन फ्री हो गई, हाथ भी फ्री हो गया। हाँ। घुटने कमर फ्री हो गई। बोलो, मैं आपको जब से मैं रिटायर हुई हूँ, ड्यू से रिटायर्ड हूँ। अच्छा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से,
तो तब से आपको फॉलो कर रही हूँ। मेरा पेट इतना बड़ा था, हाँ हाँ इतना बड़ा था। मोटी थी। बहुत मोटी थी, बहुत मोटी थी, मेरे से चला ही नहीं जाता था। अब 5 साल, जब से 16 से रिटायर हुई हूँ, अब आप देख लो मेरा पेट बिल्कुल। ये बात तो ठीक है विमलेश ने, जिनको भी रिटायरमेंट के बाद ना लोग जो है पता नहीं क्या क्या चीज़ों से भर जाते हैं। रिटायरमेंट होते होते पूरे खुद ही रिटायर हो जाते हैं, बॉडी भी रिटायर हो जाती है, बस। माइंड भी रिटायर हो जाता है, दिल दिमाग भी रिटायर हो जाता है। तभी तो लोग गवर्नमेंट कहते हैं अब तुम हमारे किसी काम में नहीं, चलो जाओ। जाओ तब योगा करना शुरू करा स्वामी जी, तब मैं करा। रिटायर लोगों के दोबारा टायर लगा देता हूँ। चलो तब दौड़ो दोबारा एक चीज और पूछनी है साहब, मैं जो आंवला खाती हूँ वो दिक्कत तो नहीं करेगा? अभी एक बार दर्दें खत्म करने के बाद खाया करो। अभी एलोवेरा पिया करो, गोखरू पिया करो, थोड़े दिन तक पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड खा लो, जिससे एक बार मजबूत बन जाए हड्डियाँ। जिनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ वो चंद्र प्रभावटी गोक्षरादि, और बाकी शेष के लिए तो पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड, ये 2 ही पर्याप्त हैं। ठीक है। तो अभी थोड़ी देर आंवला मत खाना। स्वामी जी एसिडिटी के लिए क्या करें? व्हीट ग्रास व्हीट ग्रास बेस्ट, व्हीट ग्रास लो। व्हीट ग्रास और एलोवेरा एसिडिटी के लिए। और ये जो है एलोवेरा फ्रेश मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे ही अपना ले लो। नहीं, घर में लगा रखा है। हाँ फ्रेश बढ़िया, पीछे वाले भाई को देना। तो देखो कपालभाति अनुलोम विलोम, ये तो सब रोगों की रामबाण ब्रह्मास्त्र है। आना बेज प्राणायाम કરીને कपालभाति अनुलोम विलोम, एनाથી જ આખું શરીર રૂપાંતરિત થઈ જાય, આટલું છે। ચલો अनुलोम विलोम करो अब। स्वामी जी मैं राजस्थान उदयपुर से आया हूँ और मेरे बीपी शुगर और घुटने में दर्द था। बीपी शुगर की दवाई तो मैंने यहाँ आने के बाद में बंदी कर दी है, और घुटने में मैं क्या है ज़्यादा देर बैठता था तो उठने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो और यहाँ उम्र कितनी है तेरी? शुगर 150 उम्र थी। कितनी? उम्र 55। 55। तो अभी से दर्द हो गया था? हाँ, एक घुटने में ज़्यादा देर बैठने के बाद में उठने में प्रॉब्लम आ रही थी। अभी 4 दिन में मैं आराम से आपके उठ सामने बैठ रहे। बैठा हुआ भी हूँ, उठ भी जाता हूँ। ज़्यादा देर बैठना है तो भी बैठ जाता हूँ, चलने में प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे बड़े ब्रदर ने मेरे को कहा कि एक बार आप वहाँ जाके आओ। उनकी फैमिली पूरी यहाँ आई थी, 5 जने, अच्छा। 15 दिन तक रुके थे, तो उनको काफ़ी फायदा हुआ। तो उन्होंने कहा एक बार वहाँ जरूर जाके आओ। चलो बहुत आशीर्वाद पीछे वाले भाई को देना। तेरे को क्या हो गया था? तो और भी जवान दिख रहा है। ये हमारा बेटा है। मैं मिहिर उदयपुर से हूँ। ये मम्मी, ये पापा। मेरे को ये लेफ्ट लेग में मेनिस्कस टियर हो गया था, तो डॉक्टर ने तो उधर बोल दिया कि सिर्फ ऑपरेशन से सही होगा। तो अभी तो मेरा घुटना लॉक हो जाता है, वो भी लॉक नहीं हुआ बहुत दिनों से, तो ना वो होगा भी नहीं। और बाकी मेरे को डिप्रेशन की दिक्कत थी, अब यहाँ पे खुश लग रहा है काफ़ी। ना पूरा ही ठीक हो जाएगा। डिप्रेशन तो अब तुम्हारी पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी पर तुमको सेट कर दिया तुम्हारे दिमाग को। अब उसको नेगेटिव मोड पर मत लाना, बस, है ना बेटा। चलो अगली बहन को देना। कितना ही ज़्यादा डिप्रेशन हो, एक बार योग से, यज्ञ से, ओंकार गायत्री के ध्यान से, प्राणायाम से पॉजिटिव मोड पर आ जाते हैं, फिर मतलब ही नहीं। क्या नाम बहन? स्वामी जी मेरा नाम पूर्णिमा है, पूर्णिमा नेमा। क्या क्या हो गया था? हमें चिकनगुनिया हुआ था 2018 में। हाँ, उसके बाद चिकनगुनिया के बाद बहुत दर्द होने शुरू हो जाते हैं। हाँ जी। अब क्या हाल है? अब थोड़ा हाथ सीधा होने लगा है। पहले तो हाथ पूरा टेढ़ा हो गया था। इतना टेढ़ा हो गया था? हाँ बिल्कुल। चिकनगुनिया के बाद ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाते। ऐसा ऐसा हो गया था, ऐसा था, अब थोड़ा ऐसा हो चलो गया। आशीर्वाद। हाँ, अगली बहन को देना। इनसे भी बैठ जाओ बाबूजी, आप भी अब बहुत देर हो गई, आनंद किया, अब बैठे बैठे अनुलोम विलोम करो। स्वामी जी मैं जम्मू से हूँ, तो मेरे को क्या नाम है? इंदिरा। इंदिरा। मेरे को पिछले 35-36 साल से अर्थराइटिस है। ओह। तो मैं 2005 में आपका कैंप भी बॉम्बे में अटेंड किया था, तो मैं तब से करती हूँ, लेकिन अब 2 साल से मैं लगातार प्राणायाम करती हूँ। उससे एक मेरा हाथ ये यहाँ आकर ये मुट्ठी लगती है, ये इस आंख की उंगलियाँ टेढ़ी हो गई हैं। तो मेरा ये 2 साल से रूटीन है। मैं सुबह 2.5 घंटे प्राणायाम करती हूँ और शाम को 1.5 घंटा। मेरे क्या हो सकता उसी से मैं ठीक हूँ। ये तो टेढ़ा मेढ़ा एक बार शुरू हो जाता है ना, तो पूरा शरीर को जकड़ ले। मेरे को सभी यही बोलते हैं कि आप जो प्राणायाम करती हैं उससे ठीक है। मैं 15 तारीख यहाँ आई थी, तो मेरा ये घुटना मुड़ता नहीं था। आज तो मुड़ रहा है। अब मैं बैठी हूँ तो मैं उष्ट्रासन में भी 2-4 मिनट बैठ सकती हूँ। ना तो थोड़ा थोड़ा ही करना। हाँ, बैठ लेती हूँ। अच्छा, सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि मेरी 2 साल से ऐनक उतर गई है। ऐनक उतर मेरी गई? 20 साल से मैंने ऐनक लगाई हुई थी,
तो हाँ, मेरी लेफ्ट आई में तो बिल्कुल लाइट नहीं है, तो राइट में है, तो डॉक्टर बोलते थे कि इसका ध्यान रखो नहीं तो आप अंधे हो जाओगे। ये 25 साल पहले मेरे को डॉक्टर ने बोला था। 25 साल पहले तो बोले थे अंधे हो जाएगी, चश्मा उतार। तो अभी 2 साल से तो मैंने चश्मा उतार दिया। अब जरूरत ही नहीं, आंख रोशनी आ गई वापस। मेरी उम्र 66 साल है। चलो अब कुछ नहीं होगा आपको। तो अब मैं ठीक हूँ। चलो इसको देना भाई को, टोपे वाले को। स्वामी जी जय जिनेंद्र, प्रणाम। जय जिनेंद्र। स्वामी जी मेरे कमर में दर्द 30 साल से बहुत ज़्यादा था और मैं सीधा बैठ नहीं पाता था और सारा चाहिए था मेरे को, तो बेल्ट बांधा रहा मैग्नेटिक में। पर स्वामी जी फिर बाद में SMS में भी मनाल जोशी जी ने मेरे को 10 साल पहले ट्रीटमेंट दिया था कि आपको तो खाना पड़ेंगे इंजेक्शन हर 3-3 महीने में। स्वामी 4 साल खाए मैंने, अब 4 साल से मेरे बिल्कुल दर्द ठीक है और मैंने सब बंद कर दिया। प्राणायाम मैं 2.5 घंटे करता हूँ सुबह सुबह। और स्वामी जी अस्थमा की मेरी प्रॉब्लम थी 45 साल से। 45? हाँ, बस 15 साल की उम्र में हो गई थी मेरे को। और स्वामी उस समय तो पंप इंजीनियर भी नहीं आते थे, तो बहुत तकलीफ आते थे। मतलब दवाई खाओ तो 3-3 घंटे में तो आराम मिलता था, दवाई जाए खून में जाए आराम मिलता था, बहुत दुख पाता था। स्वामी रात में बैठ रहता था, साइनस कफ बलगम बहुत ज़्यादा होता था, खांसी सब ठीक हो गई स्वामी जी मेरे। 4 साल से अस्थमा बिल्कुल ठीक हो गया मेरा। चलो ये तो जोरदार आप काम तो कर मेरे लिया। लिए भगवान बराबर है। अच्छा। और स्वामी जी आंखों का नंबर कम हो गया 2 पॉइंट मेरे, ग्लूकोमा ठीक हो गया, चश्मा पास का उतर गया, BP ठीक हो गया मेरा, एसिडिटी ठीक हो गई, बहुत चीज़ ठीक हो गई स्वामी जी। मैं 19 साल से थोक प्रणाम में? करता हूँ। हाँ स्वामी जी, थोक में बीमारी? 19 साल से प्रणाम करता हूँ स्वामी जी, 2.5 घंटे रोज करता हूँ सुबह। आप क्या नाम है? गजेंद्र भंडारी, जयपुर से। गजेंद्र भंडारी बीमारियों के भंडार हो गए। हाँ स्वामी जी बहुत बीमारी होती है। अब स्वामी जी बस थोड़ी थायराइड रह गई है अभी और थोड़े नींद बराबर नहीं आती है। उज्जाई पूरा करना। हाँ स्वामी जी करता हूँ मैं, और नींद पूरी नहीं आती, नींद में तो प्रॉब्लम होती है थोड़ी। नींद भी भ्रामरी ज़्यादा करना, उज्जाई और भ्रामरी इसको ज़्यादा कर दो। अब अगले भाई को देना, ये दोनों को। और स्वामी जी आज मैं लाइफ मेंबर बनने जा रहा हूँ आपके घर पर। बना देंगे। हाँ, इसको बैठाओ। अब तो हटा दिया इसका, इसको अलाबू करवाया था, रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण, ये लीच, ये भी सब बड़ी ज़बरदस्त लाभ करती है। ओम जी स्वामी। हाँ चलो अनुलोम विलोम कर लो पूरा। स्वामी जी ओम जी। ओम। मैं जम्मू से हूँ और मेरे घुटनों में गैब है, तो कांधों में दर्द है और पीठ में, पूरी पीठ में दर्द है। पूरी पीठ में दर्द, नंबर 5 से शुरू होती है दर्द। अब ये लगातार करना, 2 प्रोसेस है। तो ऑर्थोग्रिड की बस्ती, हाँ जी, थोड़ा सा लीच, थोड़ा सा फिर औषधि, पीड़ा नील गोल्ड ऑर्थोग्रिड आदि, और एलोवेरा गिलोय का पानी। स्वामी जी मुझे अभी अभी डेंगू हुआ था। हाँ। तो मेरे नाक से भी ब्लड निकलता है, तो क्या मैं पी सकती हूँ? हाँ पियो, और इसमें थोड़ा वो और मिला लेना थोड़े दिन, पपीते के पत्तों का रस, व्हीट ग्रास, एलोवेरा गिलोय एक साथ पियो तो प्लेटलेट भी ठीक हो जाएगा। ठीक है। हाँ चलो आगे दे। ये 2 को और पूछते हैं, ये 2 भी खतरनाक रोगी थे। कपालभाति अनुलोम विलोम पूरा कर लो, यही मेन ब्रह्मास्त्र है। ओम स्वामी जी, मैं झारखंड पाकुड़ से हूँ। क्या नाम है? अरुण कुमार केजरीवाल। सर मेरे हाथों में ये था आपका ट्रिगर फिंगर था। रोज मैं सुबह उठता हूँ तो मेरी अंगुली लॉक हो जाती है अंगुली से। जी, तो ये डॉक्टर हैदराबाद में भी दिखाया मैंने, तो इनका बताया ऑपरेशन कराने के लिए। ऐसे लॉक होती? दिखाओ जी, कैसे? ये ऐसे लॉक हो जाती है, सुबह उठता हूँ तो ऐसे लॉक हो जाती है, इसको ट्रिगर फिंगर बोलते हैं। हाँ ट्रिगर फिंगर कुछ भी बोलो। तो सब अंगुली लॉक नहीं होती है। हाँ। 2 अंगुली लॉक हो रही थी इसमें। तो हैदराबाद में दिखाया था, फिर यहाँ आया, वहाँ ऑपरेशन बोला था तो ऑपरेशन कराया नहीं मैंने ना, ठीक किया। हाँ, तो फिर यहाँ आ गया। ये तो कोई ना कोई नस और काट पाट देते। और मेरा फैटी लिवर भी है 2nd स्टेज का। गोल्ड ब्लैडर में स्टोन है, किडनी में गांठ है, ये सब भी ट्रीटमेंट चल रहा। वजन भी मैं 8-10 किलो घटा के आया था घर से, यहाँ 82 था, यहाँ यहाँ 76 है। क्या हाल है? ये ठीक है, अभी एक्यूप्रेशर करवा रहा हूँ, ये ठीक है। ये ट्रिगर फिंगर खाली एक्यूप्रेशर से ठीक हो जाता है। और अनुलोम विलोम, कपालभाति, भी लेते रहना, ये सब भी करता रहता हूँ। मेरा एक्जिमा था बहुत दिनों से, एक्जिमा एकदम खत्म हो गया। घर पर प्राणायाम करता था मैं। 20 साल पहले से मेरा एक्जिमा था, पैरों में, हाथों में। 20 वर्ष पहले से। ये भी जो है गजेंद्र भंडारी की तरह भंडार था बीमारियों का। माथा में बाल भी बहुत कम हो गया था मेरा, तो बाल भी बहुत आ गए प्राणायाम करने से। बाल भी आ गया, नया हो रहा है तो। और मेरा शुगर जो है 10 बरस पहले डॉक्टर बोले थे कि बॉर्डर लाइन पर, बीमारी याद आ रही है इसको, बॉर्डर लाइन पर है शुगर, तो मतलब आगे नहीं बढ़ेगी। तब से शुगर नहीं बढ़ी है, प्रेशर मेरा नॉर्मल रहता है एकदम।
अब एक एक आदमी को पकड़ के देखो, 10-10 बीमारी लिए बैठा है और फिर भी दवाइयाँ ठोके जा रहे हैं। एलोपैथी की शरीर दवा खा खा करके दवा खाना बन गया। अब बच गया, प्रणाम। बच गया, ठीक रास्ते पर आ गया, नहीं तो अभी तक तो माला टंग जाती फोटो के ऊपर। 5 दिन हो गया यहाँ, 5 दिन और हूँ स्वामी जी यहाँ। तो अगली बहन जी को देना। बाजार की कोई चीज नहीं खाते गजेंद्र जी, ठीक है। स्वामी जी प्रणाम। पतंजलि की खा लिया करो कभी खाने की इच्छा हो तो ना, अच्छी बात है। बाजार की कोई चीज नहीं खाना, बहुत गंदी, पता नहीं कौन क्या मिला देता है। स्वामी जी प्रणाम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं 2017 में अमेरिका गई, वहाँ मेरे पैर में गैप आ गया था। हाँ। तो चल भी नहीं पाती थी, और यहाँ पे यहाँ आई थी तब तो सब उस एयर होस्टेस से हेल्प लिया था, व्हील चेयर में आई थी। व्हील चेयर पे आई थी? हाँ जी। यहाँ आके मैंने दिखाया तो मैंने, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो मैंने तो आपका वो योगा ही करती रही। मैं 18 साल, आप सूरत आए थे तब शिविर में मैंने अटेंड किया था। क्या नाम है तुम्हारा? किरण जैन। किरण, हेलो। जब से मैं योगा ही कर रही हूँ, एक घंटा रोज सुबह करती हूँ, 5 से 6। अब तेरी व्हील चेयर कहाँ गई? यहाँ तो है नहीं। व्हील चेयर मेरी हट गई, मैं योगा करती हूँ। व्हील चेयर हट गई? हाँ जी। व्हील चेयर पर आ गई थी, एयर होस्टेस ने मदद की भाई। हाँ। इसको ले चलो भाई। और यहाँ आने के वो 6 महीने से मैं नाक में बहुत फुंसी हो रही है, एक और अपने आप ठीक होती है, अपने आप हो जाती है। अभी 6 महीने यहाँ ये 5 दिन हो गए, मेरे एकदम ठीक है। वो अंदर की फुंसी भी निकल गई। हाँ। सारा टॉक्सिन निकल गया। हाँ, निकल सारे गया। शुद्धिकरण करवाते हैं ना। खांसी भी ठीक है। खांसी भी हो गई थी। 4-6 महीने से मैं खांसी थी, वो भी ठीक है यहाँ आने के बाद। तो आज सूक्ष्म व्यायाम बताव्यो, અને સૂક્ષ્મ વ્યાયામ પ્રાણાયામ ફક્ત આ બેઝ કરી લો, એનાથી તમારી 90 થી 99% પ્રોબ્લેમ દૂર થઈ જાય। પણ લોકો આમ જ બીમારીઓથી પીડાયેલા છે, પછી આમ કહે કે આમ થઈ ગયું ને તેમ થઈ ગયું। જેને ઊંઘ નહીં આવે ને તો અનુલોમ વિલોમ, પછી ભ્રામરી ઉદ્ગીત પણ કરી લો। ચલો એ વધારે કરવાનું। पाँच सात बार थी माड़ीने 5-7 मिनट 10-15 मिनट पर अमे करावीए छे, जेने स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन पेन, अनिद्रा बहु ज होय तो પછી શ્વાસો સાથે ઓંકાર કી ગાયત્રીનું ધ્યાન। આવી રીતે ફક્ત તમે સૂક્ષ્મ વ્યાયામ અને ભસ્ત્રિકા કપાલભાતિ અનુલોમ વિલોમ ભ્રામરી ઉદ્ગીત પ્રાણાયામ જ કરશો, થોડો પરેજી પાળશો અને થોડીક ઔષધિઓ, નાના નાના ઉપચારોથી તમે મોટી મોટી બીમારીઓને પરાજિત કરી શકો છો।
તો યોગ ભગાવે રોગમાં જેમ આજે અમે આર્થરાઇટિસની વાત કરીએ આમાં જ બધા જ રોગોની અમે દરરોજ વાત કરીએ છીએ અને કેવી રીતે તમે યોગથી આયુર્વેદથી નેચરોપેથીથી નિસર્ગથી આ બધી જ બીમારીઓને તમે મટાડી શકો છો એ બાબતમાં દરરોજ આપને ઇન્સ્પિરેશન મોટિવેશન આપીને અમે યોગ કરાવીએ છીએ. તો યોગ ભગાવે રોગમાં દર્દ મારે સાથે યોગ કરજો, નિરોગ રહેજો.